پیپلز پارٹی نے مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف ملک گیر احتجاج کا اعلان کر دیا۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے لاڑکانہ میں پارٹی کارکنوں سے خطاب میں کہا، 19 اکتوبر کو مہنگائی کے خلاف مظاہروں میں پیپلز پارٹی کے کارکن اور عوام بھرپور شرکت کریں۔ حکومت نے عوام پر ایک اور پیٹرول بم گرانے کے لیے کمر کس لی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 7 روپے اضافے کا امکان، یکم نومبر سے قیمتوں میں اضافے کا خدشہ، اگلے 5 دن امپورٹ ہونے والے تیل کی قیمت کا اتار چڑھاؤ حتمی قیمت کا تعین کرے گا۔ پاکستان نے روایتی حریف کو چاروں شانے چت کیا، ہم بھارت کے ساتھ کرکٹ کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ سعودی عرب کی سلامتی یقینی بنانے کے لیے پاکستان پرعزم ہے، پاکستان ہمیشہ اپنے مخلص دوستوں کو یاد رکھتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا سعودی سرمایہ کاری فورم سے خطاب۔ 3 سال میں اشیائے ضروریہ 133% تک مہنگی، ادارہ شماریات نے مہنگائی کے حوالے سے رپورٹ جاری کر دی۔ 25 اکتوبر 2018 سے لے کر 21 اکتوبر 2021 تک گھی 133% اور چینی 84.4% مہنگی۔ شہریوں کو اشیائے خوردونوش کی سستے داموں فراہمی کے لیے چوک اعظم اور چوبارہ میں قائم کیے گئے سستے بازار منظر عام سے غائب۔ مہنگائی کی ستائی عوام، میونسپل کمیٹیز کی نااہلی کی وجہ سے کھانے پینے کی اشیاء مہنگے داموں خریدنے پر مجبور، شہریوں کا ضلعی انتظامیہ سے سستے بازار بحال کرنے کا مطالبہ۔ لیا میں پیشہ ور گداگروں نے شہریوں کا جینا محال کر دیا، چوکوں، چوراہوں، سڑکوں اور بس اڈوں پر بھکاریوں کی بھرمار۔ پنجاب حکومت کی پیشہ ور بھیک مانگنے والوں کے خلاف کارروائیوں کے احکامات کو ضلعی انتظامیہ نے ہوا میں اڑا دیا۔ کورونا کا زور ٹوٹنے لگا، موذی وبا سے اموات کی تعداد 10 سے بھی نیچے آ گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جان لیوا وائرس سے 6 افراد جاں بحق۔ NCOC کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 42,096 نئے ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 572 مریضوں میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔ ملک بھر میں کورونا سے مثبت کیسز کی شرح 1.35% رہی۔ لالیسن پولیس کی کارروائی، زیادتی کے مقدمے میں ملوث مفرور ملزم گرفتار، ناجائز اسلحہ بھی برآمد، مقدمہ درج، ملزم کو حوالات میں بند کر دیا گیا، مزید تحقیقات جاری۔ لیا کے نواحی شہر چوک اعظم میں قبضہ مافیا نے شہر خاموشاں کو بھی نہ چھوڑا۔ MM روڈ پر قائم تاریخی قبرستان میں بااثر افراد نے اپنا تسلط قائم کرنا شروع کر دیا۔ شہریوں کا ضلعی انتظامیہ سے قبضہ گروہوں سے قبرستان کی اراضی واگزار کروانے کا مطالبہ۔ کل عدم تنظیم اپنے وعدے پورے کرے تو حکومت بھی اپنے وعدے پورے کرے گی۔ پنجاب کو 28,000 ٹن درآمدی چینی مل گئی، ہر ضلع کو کوٹا دے دیا گیا، صارفین کو یہ چینی 90 روپے کلو میں فراہم کریں گے۔ ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور کی میڈیا سے گفتگو۔ سونے کو عقاب کے پر لگ گئی، قیمت تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی، فی تولہ قیمت میں 1100 روپے مزید اضافہ، گولڈ کی قیمت فروخت 1,28,500 روپے ہو گئی۔ صرافہ ایسوسی ایشن نے مزید اضافے کا بھی امکان ظاہر کر دیا۔ ڈالر کی اڑان جاری، انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 32 پیسے مزید اضافہ، قیمت 174 روپے 75 پیسے پر پہنچ گئی۔ اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر 2 روپے مہنگا ہو گیا۔ ضلع لیا بھر میں ریچ ایوری روڈ مہم کا دوسرا روز، موذی وبا کورونا سے نجات کے لیے ضلعی انتظامیہ کی طرف سے گھر گھر جا کر ویکسین لگانے کا سلسلہ جاری۔ محکمہ صحت کی جانب سے جگہ جگہ عارضی ویکسینیشن سینٹرز قائم کر دیے گئے۔ ٹیمیں 12 سال کے بچوں سے لے کر ہر عمر کے افراد کو ویکسین لگائیں گی۔ سردی قیامت کی نوید آتے ہی ڈرائی فروٹ کی قیمتیں بھی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ لیا میں ڈرائی فروٹ کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سردی کی شدت بڑھتے ہی قیمتیں عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو جائیں گی۔ شہریوں کا ضلعی انتظامیہ سے خشک میوہ جات کے نرخ سرکاری سطح پر متعین کرنے کا مطالبہ۔ پنجاب میں کورونا کے وار جاری، موذی وائرس کے مزید 132 کیسز سامنے آ گئے۔ لاہور میں سب سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے، لیا میں بھی کورونا کا کیس سامنے آ گیا۔ ضلعی انتظامیہ لیا کا شہریوں سے SOPs پر عمل درآمد کرنے اور ویکسینیشن کروانے کی اپیل۔
लिया में म्यूनिसिपल कमेटी की गफलत की सजा शहरी भुगतने लगे। सरकारी स्कूलों के अतराफ में और गली मोहल्लों में कूड़े क्रिकेट के ढेर, शहरी और तलबा तलबात मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। अवाम का डिप्टी कमिश्नर लिया से सफाई की सूरत हाल बेहतर करवाने का मुतालबा। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस टुडे से मैं हूँ मैमूना रफीक और मैं हूँ हसन रऊफ। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात एक छोटी सी ब्रेक के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं। खबर शामिल करते हैं मूजी वबा कोरोना के हवाले से कि पंजाब में कोरोना के वार जारी। वायरस से मजीद 132 केसेस सामने आ गए। लाहौर में सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। लिया में भी कोरोना का एक केस सामने आ गया। ज़िला इंतज़ामिया का शहरों से SOPs पर अमल दरामद करने और वैक्सीनेशन करवाने की अपील। सेक्रेटरी हेल्थ केयर के मुताबिक लाहौर में 54, डेरा गाजी खान में 3, फैसलाबाद 24, मुजफ्फरगढ़ 2, पाकपतन 3, रावलपिंडी 11, सरगोदा और टोबा टेक सिंह में 4 केसेस सामने आए हैं। खबर शामिल करते हैं कि सोने की कीमतों में इजाफे का तसलसल जारी है। फी तोला कीमत में 1100 रुपये मजीद इजाफा होने के बाद गोल्ड की कीमत फरोख्त तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर 1,28,500 रुपये पर पहुँच गई। सराफा एसोसिएशन के मुताबिक गोल्ड की कीमत खरीद 1,27,700 रुपये हो गई, जबकि इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट $1,808 पर बंद हुई। चांदी की कीमत 1,490 रुपये पर बरकरार। खबर शामिल करते हैं कि रुपए की बेकदरी का सिलसिला थम न सका। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत 32 पैसे मजीद गिर गई। डॉलर की कीमत में 32 पैसे मजीद इजाफा। कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह 174 रुपये 75 पैसे पर पहुंच गई। फॉरेक्स मार्केट के मुताबिक ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत में 2 रुपये इजाफा। कीमत फरोख्त 176 रुपये 75 पैसे हो गई। इक़्तिसादी माहिरीन के मुताबिक रुपया की बेकदरी का सिलसिला मजीद भी जारी रहने का इम्कान है। मूजी वबा कोरोना से निजात के लिए मुल्क भर की तरह ज़िला लिया में भी पंजाब हुकूमत के अहकामात पर RED मुहिम के दूसरे रोज़ भी महकमा सेहत की जानिब से शहरियों को वैक्सीन लगाने का सिलसिला जारी। ज़िला लिया में जगह जगह आर्जी वैक्सीनेशन सेंटर कायम कर दिए गए, जहां शहरियों को पहली और दूसरी दोनों खुराकें लगवाने की सहूलत मुहैया की गई है। डिप्टी कमिश्नर असवर ज़िया का कहना है कि 44% आबादी यानी 5 लाख से ज़ायद अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। 2,25,000 से ज़ायद अफराद को अभी वैक्सीन लगाना बाकी है। उनका कहना था कि ज़िला भर में टीमें घर घर जाकर लोगों को मूजी वबा से बचाव के लिए वैक्सीन लगा रही हैं। शहरी अहदाफ को जल्द मुकम्मल करने के लिए और जानलेवा वबा से निजात हासिल करने के लिए ज़िला इंतज़ामिया का साथ दें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी ने लाड़काना में पार्टी कारकुनों से खिताब में कहा कि मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 29 अक्टूबर को ज़िलाई सतह पर मुल्क गिर एहतजाज करेगी। उन्होंने अपील की कि 29 अक्टूबर को महंगाई के खिलाफ मुजाहिरों में पीपल्स पार्टी के कारकुन और अवाम भरपूर शिरकत करें। अपोजिशन इत्तेहाद PDM ने भी महंगाई के खिलाफ तहरीक शुरू की है, जिसके तहत मुल्क भर में मुजाहरे किए जा रहे हैं। खबर दे रहे हैं आपको कि हुकूमत ने एक बार फिर अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी कर ली। रुपया की कदर कम और तेल की कीमत बढ़ने का असर। 1 नवंबर से पेट्रोल मजीद महंगा होने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक डीजल की कीमत में 9 रुपये फी लीटर तक इजाफे का खदशा है। अगले 5 दिन इम्पोर्ट होने वाले तेल की कीमत का उतार चढ़ाव हतमी कीमत का तयन करेगा। हुकूमत हर 15 दिन में पेट्रोल की कीमत का तयन करती है। 16 अक्टूबर को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 12 रुपये फी लीटर तक का इजाफा किया गया था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान ने रिवायती हरीफ को चारों शाने चित किया। इंडिया को शिकस्त के बाद ये वक्त पाक भारत ताल्लुकात पर बात करने का नहीं, हम भारत के साथ क्रिकेट को आगे बढ़ाना चाहते हैं। सऊदी सरमायाकारी फोरम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ बंधा हुआ है और इसकी 2 वजूहात हैं।
پہلی وجہ مقدس مقامات ہیں اور دوسری وجہ جب بھی پاکستان کو ضرورت پڑی ہے سعودی عرب ہمارے ساتھ کھڑا رہا۔ عمران خان نے کہا کہ سعودی عرب کی سلامتی یقینی بنانے کے لیے پاکستان پرعزم ہے۔ پاکستان ہمیشہ اپنے مخلص دوستوں کو یاد رکھتا ہے۔ میں سعودی عرب کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ کا دفاع درپیش ہوگا تو دنیا میں کچھ بھی ہو رہا ہو لیکن ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ پاکستان کی معیشت پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ادارے تھے جو ایشیا کے تمام اداروں سے مضبوط تھے۔ ہماری قومی ایئر لائن PIA دنیا کی بہترین ایئر لائن تھی اور اس نے مزید 5-6 ایئر لائن بنائیں۔ شرح نمو درست سمت میں جا رہی تھی لیکن بدقسمتی سے جیسے ملکوں کی تاریخ میں ہوتا ہے راستہ تبدیل ہو جاتا ہے تو پھر ہم نے بھی اپنا راستہ کھو دیا۔ خبر شامل کرتے ہیں مہنگائی کے حوالے سے کہ 3 سالوں میں اشیاء ضروریہ 133% تک مہنگی۔ ادارہ شماریات نے مہنگائی کے حوالے سے اپنی رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق 3 سالوں میں گھی 133% فی کلو مہنگا ہوا جبکہ چینی 84.4% فی کلو مہنگی ہوئی۔ ادارہ شماریات کے مطابق ان 3 برسوں میں آلو 64%، دال ماش 73.2%، ٹماٹر 63.2%، زندہ مرغی 59.3%، دال مسور 56%، 20 کلو آٹے کا تھیلا 52% مہنگا ہوا جبکہ پیاز 40.1%، بیف 40.2%، انڈے 46%، چھوٹی پلین بریڈ 43.3%، مٹن 42%، دال مونگ 41%، تازہ دودھ 32%، پیاز 40.1% فی کلو مہنگا ہوا۔ ٹوٹا باسمتی چاول 25%، دال چنا 22%، پیٹرول 47.8% اور ڈیزل 26% فی لیٹر مہنگا ہوا ہے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کا ٹاکرا آج شارجہ میں ہونے جا رہا ہے۔ نیوزی لینڈ اور پاکستان کے درمیان حالیہ سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے اونچ نیچ ہو چکی۔ آج کا میچ کیسا ہوگا مزید جان لیتے ہیں اپنے نمائندے عامر علی آوان سے جو کہ ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر لیا کے ساتھ موجود ہیں۔ بالکل میں موجود ہوں ڈسٹرکٹ سپورٹ آفس لیا کے اندر۔ آج پاکستان ٹیم اور نیوزی لینڈ ٹیم کا ٹاکرا ہونے جا رہا ہے۔ ریسنٹلی جو نیوزی لینڈ کی ٹیم تھی وہ سیکورٹی کے ایشوز کو بنیاد بنا کر پاکستان سے لیفٹ ہوئی تھی۔ آج دوبارہ جو ہے ان کا ٹاکرا ہونے جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈسٹرکٹ سپورٹ آفیسر امتیاز احمد بھٹی، ان سے جانتے ہیں کہ اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ جی بالکل، نیوزی لینڈ یہاں سے گئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بزدلی تھی ان کی۔ یہاں پہ کسی قسم کے سیکورٹی خدشات نہیں ہیں۔ پاکستان میں الحمدللہ اس وقت ساری سپورٹس ہو رہی ہے، انٹرنیشنل لوگ بھی آئے ہوئے ہیں اور کھیلتے ہیں، یہاں پہ میچز ہو رہے ہیں مختلف قسم کے، اور ہمارے اپنے جو انٹرنلی سپورٹس ہے وہ ٹوٹلی یہاں پہ لاہور میں اور کراچی میں، اسلام آباد میں اور بڑے شہروں میں ہو رہی ہے۔ کبھی الحمدللہ کبھی ہمارا کوئی سیکورٹی کا ایسا ایشو نہیں ہوا جس سے ہم یہ کہیں کہ یہ خدشات، ان خدشات کے مد نظر وہ ٹیم ہمیں چھوڑ کے گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے میچ کے حوالے سے سر آپ کے کیا احساسات ہیں، کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ جی بالکل، انشاءاللہ پاکستان کا مرال پچھلے انڈیا کے ساتھ میچ کھیلنے کے بعد جو ہائی ہوا ہے تو وہ انشاءاللہ اس میں رزلٹ آپ دیکھیں گے کہ وہ انڈیا کیوں اپنا نیوزی لینڈ کیوں چھوڑ کے بھاگی ہے، وہ انشاءاللہ رزلٹ ویسے ہی ہوگا جیسے انڈیا کے ساتھ ہوگا۔ حسن علی، ان سے جانتے ہیں کہ اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ میرے خیال میں جیسے ڈسٹرکٹ سپورٹس افسر صاحب بتا رہے تھے کہ پاکستانی ٹیم کا مورال تو اس وقت بہت بلند ہے، اور ایز اے پاکستانی ہماری یہ دعا ہے کہ پاکستان یہ میچ جیتے اور ورلڈ کپ جیت کر آئے۔ ہماری دعائیں ہیں ان کے لیے، لیکن اس وقت جو ٹیم ہے وہ کمبائن کھیل رہی ہے اور جو ٹیمیں کمبائن کھیلا کریں گی وہ کبھی بھی نہیں ہارتی۔ ایز اے پاکستانی میری دعا ہے کہ پاکستان یہ ورلڈ کپ جیت کر آئے اور ہمیں اس کی بہت خوشی ہوگی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں تحصیل سپورٹ آفیسر مرینا رفیق، ان سے جانتے ہیں پاکستان ٹیم کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ جی جیسا کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم جو ہے وہ پاکستان آئی اور سیکیورٹی رسک بنانے کی وجہ سے جو ہے وہ واپس بھی چلی گئی، تو سیکیورٹی کا تو ایز سچ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے پاکستان میں۔ الحمدللہ ہماری بہت ساری ٹیمز جو ہیں وہ کھیلتی بھی ہیں یہاں پہ، نیشنل لیول پر جتنے بھی میچز بھی ہوتے ہیں تو الحمدللہ بہت فروٹفل طریقے سے وہ انجام بھی پاتے ہیں، تو ایز سچ ایسا کوئی ایشو نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اب گئے ہیں وہ لوگ وہاں پہ کھیلنے کے لیے، تو
जो है पाकिस्तान के लिए हमारी बहुत सारी दुआएं हैं, और जैसे रिजवान और बाबर आजम ने प्रीवियस मैच में बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, तो नेक्स्ट भी हमारी दुआएं हैं और हमारी उनके साथ हैं कि वो बहुत अच्छा हमें जो है वो रिजल्ट देंगे। और हम जी, इनका कहना था कि पाकिस्तान की टीम जो है वो बड़े अच्छे तरीके से खेल रही है और इनके जो जज्बात हैं वो यही हैं कि पाकिस्तानी टीम जीतेगी। जी जी आमिर, आपका बहुत शुक्रिया। खबर है लिया से, जहां कोरोना के खात्मे के लिए जिले इंतजामिया मुतहरिक, घर घर जाकर वैक्सीनेशन के लिए मोबाइल यूनिट कायम कर दिया गया, जिसमें जगह जगह जाकर महकमा सेहत की टीमें लोगों को वैक्सीन लगा रही हैं। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे राना शहरोज साजिद, CEO हेल्थ डॉक्टर अमीर अब्दुल्ला के साथ मौजूद हैं। मजीद हम उनसे जानते हैं। बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हिदायत पर रेड कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का आगाज़ कर दिया गया है, जिसमें मोबाइल वैक्सीनेशन यूनिट जो है वो मुख्तलिफ जगह पर जाकर वैक्सीनेशन लगाएंगे। इस हवाले से हमारे साथ CEO हेल्थ डॉक्टर अमीर अब्दुल्ला सामटिया साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? कि पूरे पंजाब में हमारी रेड कोविड वैक्सीनेशन कैंपेन चल रही है, इसी तरह लिया में भी अब स्टार्ट हो चुकी है। ये 25 अक्टूबर से लेके 12 नवंबर तक चलेगी। तो इस दौरान हमारी मोबाइल टीमें, फिक्स टीमें घर घर जाके, जो हमारी मोबाइल टीमें जाके वैक्सीनेशन करेंगी और उधर किट स्टेशन बनाएंगी मुख्तलिफ महलों में, और उधर जाके लोगों को हम मोबिलाइज करेंगे। हमारे टारगेट जो है वो 11,86,000 के करीब है। तो इसमें से हम ऑलरेडी 5,80,000 के करीब हम टारगेट अचीव कर चुके हैं। तो इस कैंपेन में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम अपने टारगेट को अचीव करें। ये मुहिम जो है स्पेशली हमारे प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की तरफ से है, और वो ही इसको सारा कैंपेन को मॉनिटर कर रहे हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट में सारी टीमें काम कर रही हैं, और हमारे मॉनिटर्स भी और हमारी टीमें भी घर घर जाके ये काम कर रही हैं। हमारी 132 टीमें हैं मोबाइल, जो कि किट स्टेशन पे काम करेंगी, और 58 जो है फिक्स टीमें हैं जो फिक्स जगह पे जाके काम करेंगी। इंशाल्लाह हम इस टारगेट को कंप्लीट कर लेंगे। मेरी लिया अहलियान लिया से एक इल्तिमास है कि वो अपने और अपने जानने वालों को, अपने घर वालों को कोशिश करें कि जल्दी इसी दौरान ही अपनी वैक्सीन करवा लें, ताकि हम इस कोरोना की मर्ज से बच सकें। थैंक यू। मोबाइल वैक्सीनेशन के क़याम का मकसद है कि हर घर तक जो है वैक्सीनेशन पहुंचाई जाए। जी शहरोज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लिया के नवाही शहर चौकासम में दुकानों पर चीनी का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। मार्केट में स्टॉक माफिया महंगे दामों में फरोख्त करने पर सरगर्म। जिला इंतजामिया मार्केट में चीनी मुहैया करने में नाकाम। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शहजाद गुज्जर से। जी शहजाद। जी बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई में तब्दीली सरकार की जानिब से जिस चीज़ का भी नोटिस लिया गया, या तो वो मंजर आम से गायब कर दी जाती है, या फिर बाद में वो बहरान की शक्ल इख्तियार कर जाती है। कुछ ऐसे ही हालात चौकाज़म में नज़र आ रहे हैं, जहां मार्केट में चीनी गायब होने के साथ साथ चीनी का कहत पड़ गया है। हमारे साथ इस वक्त कुछ दुकानदार मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि वो चीनी के बहरान के हवाले से क्या कहना चाहते हैं। जी बताएं, चीनी के बहरान के हवाले से क्या कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, हमें ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से चीनी मुहैया की जाती है, जो तकरीबन 2 दिन के लिए 1 या 2 गट्टू मुहैया किया जाता है, लेकिन वो भी 2-3 दिन से हमें मुहैया नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से चीनी की किल्लत पैदा हुई है। हम आगे कस्टमर को फ़रोख्त करने से गुरेज आए, क्योंकि हमें चीनी मिल रही नहीं, हमारे पास है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है चीनी। इसलिए ज़िला इंतज़ामिया से भी मुतालबा किया है कि हमें चीनी मुहैया किया जाए, ताकि हम कस्टमर को मुहैया कर सकें, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया भी चीनी मुहैया करने में नाकाम है। महंगी चीनी फरोख्त कर रहे हैं। जी बिल्कुल, वो कुछ हैं डीलर जो दुकानदार हैं जिन्होंने स्टॉक की हुई है, वो अब फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि ज़िला इंतज़ामिया मुहैया नहीं कर रही, तो इसलिए वो ब्लैक में अपनी मन मर्ज़ी के रेट लगा के फ़रोख्त कर रहे हैं। जी
बिल्कुल जैसा कि आपने सुना, दुकानदार का कहना है कि चीनी इंतज़ामिया की तरफ से मुहैया ना करने की वजह से चीनी का बहरान पैदा हो गया है। अगर इसके साथ साथ माफिया के हवाले से बात की जाए तो वो भी चीनी का स्टॉक करके बाद में ब्लैक में सेल कर रहे हैं। अगर इसके साथ साथ इंतज़ामिया की बात की जाए तो ज़िलाई इंतज़ामिया चीनी मुहैया करने में बुरी तरह नाकाम है। जी शहजाद, आपका बहुत शुक्रिया। सर्दी की आमद की नवीद आते ही ड्राई फ्रूट की कीमतें भी सीढ़ियां चढ़ने लगीं। लिया में ड्राई फ्रूट की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। शहरियों का कहना है कि सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही कीमतें आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाएंगी। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राना शहरोज से। हाँ जी बिल्कुल, सर्दियाँ बढ़ने के साथ साथ जो है ड्राई फ्रूट की जो कीमतें हैं उसमें इजाफा हो रहा है। ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल जो बढ़ जाता है सर्दियों के साथ। लोग जो हैं ड्राई फ्रूट की शॉप का रुख कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस हवाले से। बढ़ रही है तो ये ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है, लेकिन ये है कि इनके जो रेट्स हैं पिछले साल की निस्बत बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अब क्या करें, लेना तो है अब इनसे, जैसे भी रेट्स हों लेना तो है हमने इनसे। सर्दियाँ बढ़ने के साथ साथ जो है ड्राई फ्रूट की कीमतों में इजाफा हो रहा है। यहाँ के लोगों का कहना है कि पिछले साल की निस्बत इस साल जो है ड्राई फ्रूट की कीमतें ज़्यादा हुई हैं। जी शहरोज, आपका बहुत शुक्रिया। खबर शामिल करते हैं लिया से, जहां पंजाब हुकूमत की जानिब से ज़िला भर में गरीब और मजदूर तबके को अशियाए खुर्दनोश के सस्ते दामों फराहमी के लिए 6 सस्ते बाजार लगाए जाने के अहकामात जारी किए गए। लेकिन म्यूनसिपल कमेटीज़ की नाअहली की वजह से शहरी ताहाल आम बाजार से खाने पीने की अशिया महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। चौक आज़म और चवारा के शहरियों का कहना है कि सस्ते बाजार के नाम पर म्यूनसिपल कमेटीज़ अमला ने फंड्स तो खुर्द कर लिए, लेकिन गरीब आवाम को कोई सहूलत ना मिल सकी। महंगाई की सताई आवाम ने डिप्टी कमिश्नर लिया से अशियाए खुर्दनोश में रिलीफ के लिए सस्ते बाजारों की फौरी बहाली का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं लिया से, जहां पेशावर गदागर शहरियों के लिए वबाले जान बने हुए हैं। चौकों, चौराहों, सड़कों, अदालतों, सरकारी दफातर, दुकानों और आम शाहराहों पर मौजूद पेशावर भिखारियों ने ज़बरदस्ती शहरियों और मुसाफिरों से भीख वसूल करना मामूल बना लिया। नौजवान लड़कियों, लड़कों और बच्चों पर मुश्तमिल गदागर भीख मांगने के अलावा शहरियों की जेबें तराशने और चोरी चकारी की वारदातों में भी मुलविस होते हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से गदागरी के खात्मे की लानत के लिए पंजाब पुलिस को तरजीही बुनियादों पर कार्रवाइयाँ करने के अहकामात जारी किए गए, जो मुतलका थानों के SHOs ने हवा में उड़ा दिए। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से गदागरी के नासूर के खात्मे के लिए जारी किए गए अहकामात पर अमल दरामद करवाने और पेशेवर भीख मांगने वालों को रोकने के लिए मौसर और नतीजा खेज इकदाम करने का मुतालबा किया है। वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। में एक बार फिर खुशामदीद। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। लिया के नवाही शहर चौक आज़म में MM रोड पर मौजूद तारीखी कब्रिस्तान को भी कब्जा माफिया की नज़र लग गई। 62 अफराद ने 5, 10 और 15 मरले के प्लाट बनाकर 4 दीवारी कायम करके तसल्लुत कायम करना शुरू कर दिया। शहरियों का कहना है कि मकामी मुंतखब सियासी नुमाइंदे, महकमा जंगलात और दीगर अरबाब अख्तियार कब्जा माफिया के सामने बेबस नजर आते हैं। कब्जा माफिया एक कब्र बनाकर 20 कब्रों की जगह पर काबिज हो जाता है। कब्रिस्तान की 4 दीवारी सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अहम जिम्मेदारियों में शामिल है, लेकिन मुतलका इदारों की लापरवाही से शहर खामोशा भी कब्जा माफिया का निशाना बन चुके हैं। खबर शामिल करते हैं क्राइम के हवाले से, जहां इंचार्ज ट्रांसजेंडर क्राइम लेडी सब इंस्पेक्टर साइमा बतूल ने करोड़ डालिसन में कार्रवाई करते हुए ज्यादती के मुकदमा में मुलविस मफरूर मुलजिम को गिरफ्तार करके नाजायज़ असलहा बरामद कर लिया। पुलिस तर्जमान के मुताबिक मुलजिम रमज़ान उर्फ अमानुल्लाह से नाजायज़ असलहा पिस्टल बरामद करके मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। मुलजिम को पाबंद सलासिल कर दिया गया, जहां उससे मज़ीद तहकीकात जारी हैं। खबर शामिल करते हैं मूजी वबा कोरोना के हवाले से कि कोरोना वायरस से मजीद 6 अफराद जाम बहक हो गए। मुल्क भर में मजबूई अमवात की तादाद
28,392 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 12,69,806 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 572 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 4,39,307, सिंध में 4,68,164, खैबर पख्तूनख्वा में 1,77,553, बलूचिस्तान में 33,204, गिलगित बल्तिस्तान में 10,386, इस्लामाबाद में 1,07,049, जबकि आज़ाद कश्मीर में 34,443 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 2,72,72,249 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 42,096 नए टेस्ट किए गए, जबकि अब तक 12,17,218 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 1,028 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। तर्जमान हुकूमत पंजाब हसन खावर ने कहा कि कोशिश है कि किसी मजहबी जमात से तसादम ना हो और यकीन है कि मुज़ाकरात से मामला तय पा जाएगा। हसन खावर ने मुगलपुरा में महकमा खुराक के सेंटर का दौरा किया और दरामदी चीनी के स्टॉक का जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि मसाइल सड़क पर नहीं, डायलॉग से हल होते हैं। कल अदम तंजीम अपने वादे पूरे करे तो हुकूमत भी वादे पूरे करेगी। उनका कहना था कि पंजाब हुकूमत 28,000 टन दरामदी चीनी मिल गई है, हर ज़िले को कोटा दे दिया है। सारिफीन को ये चीनी 90 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब होगी। डेरा गाजी खान में हुकूमत ने गरीब परवर सकीम एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत माली इमदाद की दूसरी किस्त का आगाज़ कर दिया। कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीज़न सारा असलम ने सेंटर का दौरा करते हुए मुस्तहिक ख़वातीन में 12,000 रुपये फ़ी कस के हिसाब से माली इमदाद तकसीम की। कमिश्नर ने शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा भी किया। सारा असलम ने एहसास कफालत सेंटर का दौरा करते हुए बायोमेट्रिक तस्दीक, माली इमदाद की तकसीम और दीगर मराहल का बारीक बीनी से जायज़ा लिया। तमाम सेंटर्स पर कोरोना SOPs और दीगर मामलात का भी जायज़ा लिया। कमिश्नर सारा असलम ने कहा कि माली इमदाद के अमल को शफाफ बनाया जाए, रिटेलर्स और मुतलका अमले की सरगर्मियों पर नज़र रखी जाए, माली बदउनवानी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कमिश्नर सारा असलम ने कहा कि एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत तमाम सेंटर्स की सरगर्मियों को मॉनिटर किया जाएगा। कमिश्नर ने पुलडार चौक पर मॉन्यूमेंट की तामीर का टास्क जल्द मुकम्मल करने की हिदायत जारी की। उन्होंने कहा कि मटेरियल के मयार को यकीनी बनाया जाए। कमिश्नर सारा असलम ने क्लासेस का मुआयने के दौरान उस्तानी भी बन गईं। उन्होंने तलबा से नसाबी सवालात भी किए। स्टाफ और क्लास रूम्स में सफाई बेहतर बनाने की हिदायत। आपको अपडेट करते चलें कि पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों के पेश नज़र वजारत रेलवे ने फ्रेट का 5% जबकि पैसेंजर ट्रेनों का 10% किराया बढ़ाने का फैसला कर लिया। तर्जमान पाकिस्तान रेलवे ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों के पेश नज़र ट्रेनों के किराए बढ़ाने के लिए कमेटी तश्कील दी थी। कमेटी ने 15% किराए बढ़ाने की तजवीज़ दी थी। वजारत रेलवे ने मुसाफिरों पर माशी बोझ कम करने के लिए फ्रेट का 5% जबकि मुसाफिर ट्रेनों का 10% किराया बढ़ाने का फैसला किया है। खबर है कि कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीज़न सारा असलम की ज़ेर सदारत DCC का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें डेवलपमेंट स्कीमों को मंजूरी के लिए मशरूत तौर पर क्लियर कर दिया गया। तरक्याती मनसूबों को DCC के प्लेटफॉर्म से क्लियर होने पर मुतलका प्लेटफॉर्म से मंजूरी के मराहल पूरे किए जाएंगे। कमिश्नर सारा असलम ने मुतलका महकमों के अफसरान से कहा कि वो मनसूबों पर काम की रफ्तार तेज़ करें। नए मनसूबों की मंजूरी से कबल खामियों को दूर किया जाए। यहाँ पर खबर शामिल करते हैं लिया से, जहाँ असिस्टेंट कमिश्नर शीजा रहमान का एहसास कफालत सेंटर्स का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर ने कोटला हाजी शाह और गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज बराए ख़वातीन लिया और कोट सुल्तान का दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर ने एहसास कफालत सेंटर पर अमला की कारकर्दगी, सहूलियात और सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया। रकम की वसूली के लिए आने वाले सालीन से भी मुलाकात की। असिस्टेंट कमिश्नर ने मुतलका अमला को बेहतर सहूलियात की फरहमी की हिदायत की। खबर शामिल करते हैं लिया से, जहां म्यूनिसिपल कमेटी की गफलत की सजा शहरी भुगतने लगे। सरकारी स्कूलों के अतराफ में और गलियों मोहल्लों में कूड़े क्रिकेट के ढेर, शहरी और तलबा व तालिबात मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा
आमिर अली आवान से। बिल्कुल मैं मौजूद हूँ गवर्नमेंट हाई स्कूल मंडी टाउन के बिल्कुल अकब में। गवर्नमेंट हाई स्कूल मंडी टाउन की जो मुल्हिका दीवार है उसके बिल्कुल साथ ही जो कूड़ा क्रिकेट के ढेर लगे हुए हैं, यहाँ पे पूरे शहर का जो कूड़ा क्रिकेट है ला के जमा कर दिया जाता है। इसे यहाँ पे एक डंपिंग पॉइंट बना दिया गया है, इससे बीमारियाँ फूटने का खदशा है। और एक तरफ गवर्नमेंट हाई स्कूल मंडी टाउन है तो दूसरी तरफ गर्ल्स का हाई स्कूल है, लेकिन इंतज़ामिया की तरफ से इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। यहाँ पे काफ़ी हद तक जो है कूड़ा क्रिकेट के ढेर हैं। नीट एंड क्लीन प्रोजेक्ट की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। इंतज़ामिया को चाहिए कि इसके ऊपर थोड़ी सी तवज्जो दे ताकि यहाँ पे जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं वो बीमारियों से बच सकें। जी आमिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। MM रोड पर कायम तारीखी कब्रिस्तान में 62 अफराद ने अपना तसल्लुत कायम करना शुरू कर दिया। शहरियों का जिला इंतजामिया से कब्जा ग्रुपों से कब्रिस्तान की अराजी वागुजार करने का मुतालबा। मजीद देखिए ब्यूरो चीफ कमर इकबाल की ये रिपोर्ट। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। लेकिन नवाई शहर चौक आजम में MM रोड पर मौजूद तारीखी कब्रिस्तान को भी कब्जा माफिया की नजर लग गई। 62 अफराद ने 5, 10 और 15 मरले के प्लाट बनाकर 4 दीवारी कायम करके तसल्लुत कायम करना शुरू कर दिया। शहरियों का कहना है कि मकामी मुंतखब सियासी नुमाइंदे, महकमा जंगलात और दीगर अरबाब इख्तियार कब्जा माफिया के सामने बेबस नजर आते हैं। कब्जा माफिया एक कब्र बनाकर 20 कब्रों की जगह पर काबिज हो जाता है। जनाब चौक आजम ਦਾ ਮਕਾਮੀ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਡੇ ਚੌਕ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਮਲਤਾਨ ਰੋਡ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਕਬਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 10-5 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮੱਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਲੈ ਕੇ ਹੁਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਣ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦਫਨਾਉਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਬਜ਼ਾ ਬਰਗੋਪਾ ਜਾਂ ਕਿਨਾਰਾ जगह मान ली ये नहीं मलनी होनी चाहिए। का रैशी हूँ और मुल्तान रोड का जो कब्रिस्तान है यहाँ आवाम एक कब्र बनाने के लिए आती है, लेकिन और 5-7 कब्रों की जगह वो मल के चली जाती है। सर ये नजायज़ कर रहे हैं और बहुत ये नाइंसाफ़ी है। जो दूसरे आदमी जो कब्र बनाने के लिए आते हैं उन्हें कब्र बनाने के लिए जगह नहीं मिलती। सर मेरी अपील है कि ये जो ग्रुप खाना है ये बंद किया जाए और हमें जो अपने प्यारों की कब्रें बनाने के लिए जगह मिलती है वो कम से कम एक कब्र की जगह मालें, उससे अलावा ज़्यादा नहीं। शहरी अरबाब इख्तियार से कब्रिस्तान को कब्जा माफिया से महफूज रखने के लिए इकदाम करने का मुतालबा कर दिया। यानी कि 4 दीवारी सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अहम जिम्मेदारियों में शामिल है, लेकिन मुतलका इदारों की लापरवाही से शहर खमोशा भी कब्जा माफिया का निशाना बन चुके हैं। हमारी टीम के हमरा मलक कमर इकबाल, वॉइस टुडे न्यूज़, चौक आजम। खबर शामिल करते हैं करोड़ आलीसन से, जहां जामपुर में पटवारी की हलाकत। अंजुमन पटवारियान की हड़ताल छठे रोज भी जारी है। कलम छोड़ हड़ताल के बायस साइलिन मुश्किलात से दो चार हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं करोड़ आलीसन से ब्यूरो चीफ जहूर बुज़दार। अफसरान के जहनी टार्चर और जामपुर में पटवारी की हलाकत पर करोड़ में अंजुमन पटवारियान की हड़ताल छठे रोज में दाखिल हो गई है। कलम छोड़ हड़ताल के बायस साइलिन की परेशानियां भी बढ़ गई हैं। पटवारियों के मुतालबात हैं कि जामपुर में पटवारी वसीम मरहूम के खानदान को इंसाफ फराम किया जाए। हम कलम भाई वसीम की शहादत को मजम्मत करें क्योंकि उन्होंने जहनी तौर पर टार्चर किया गया, जिन वजह पर उन्होंने मौत वाक़ हुई है। इंशाअल्लाह पूरे पंजाब में असा स्ट्राइक पे हैं जब तक सारे भाई को इंसाफ नहीं मिलता, और असा पुरजोर मुतालबा कर रहे हैं कि सारे भाई को इंसाफ दिता वजे और उन्हें कातलों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया। हमारी ये हड़ताल कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि हमारी ये हड़ताल एक मरहूम शहीद पटवारी के हकूक़ के लिए है। उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। जिसको टार्चर किया गया है और टार्चर होने के बाद उसने अल्लाह को जान दी है, तो हम चाहते हैं कि जो लोग तकलीफ़ में मुब्तला हैं उनकी तकलीफ़ दूर होनी चाहिए, लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, लोगों के काम होने चाहिए। लोग परेशानी में मारे मारे फिर रहे हैं। हमारा कोई शौक़ नहीं, हम गवर्नमेंट मुलाजिम हैं, गवर्नमेंट को सर्विस देते हैं, लोगों को भी सर्विस देते हैं। तो हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी हमारे मरहूम शहीद पटवारी के साथ इंसाफ हो, उसके साथ जो ज़्यादती की गई उसका अजाला हो,
जिन ज़ालिमों ने اس के साथ ज़्यादती की उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ये जल्दी मसला हल हो और हम लोगों को जिस तरह पहले रिलीफ दे रहे थे, लोगों को सर्विस दे रहे थे, हम उसी तरह अपना सिलसिला आगे जारी सारी रखें। पटवारियों की कलम छोड़ हड़ताल पर दूर दराज से आने वाले साइलीन मुश्किलात से दो चार हैं। कैमरा टीम के साथ ज़हूर बुज़दार, वॉइस टुडे न्यूज़, करोड़लाली सन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के तहत सेक्रेटरी बल्दियात ने म्यूनिसिपल चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और जनरल काउंसलर्स को दोबारा बहाल कर दिया। इसी सिलसिला में चौबारा म्यूनिसिपल कमेटी में पहला इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें चेयरमैन, वाइस चेयरमैन ने अपना चार्ज संभाल लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं चौबारा से ब्यूरो चीफ ताहिर चौधरी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत सेक्रेटरी बल्दियात, म्यूनिसिपल चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और जनरल काउंसलर्स को दोबारा बहाल कर दिया। इस सिलसिले में चौबारा म्यूनिसिपल कमेटी में पहला इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें चेयरमैन, वाइस चेयरमैन ने अपना चार्ज संभाल लिया। चेयरमैन सरदार मजहर अब्बास खान मगसी और वाइस चेयरमैन मलिक इजाज लेल ने अपने बयान में कहा, अदलिया का हमें बहाल करने के बाद आज हमारा पहला बाज़ाब्ता इजलास है। कन्वीनर साहब की ज़ेर सदारत हो रहा है, हमारे तमाम मेंबरान आए हुए। इसमें एजेंडा में हम अदालत आलिया का शुक्रिया अदा करेंगे। हमारा कौमी असासत डॉक्टर कदीर खान साहब, उनकी फातिहा खानी करेंगे। फिर हम अपने शहर के सफाई के मसाइल पर डिस्कस करेंगे, मेंबरान से तजावीज़ लेंगे और जो हमारा ये टाइम ज़ाय हुआ है, बहुत कीमती ज़ाय हुआ है, उसकी हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमसे जो भी उसका अजाला हो सकता है हम करें, वो कमी बेशी पूरी करें जो पिछले दौर में रह गई हैं, काम नहीं हुए। आपके भी सामने हैं, जो काम हुआ है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इंशाअल्लाह हम 24 घंटे यहाँ मौजूद हैं। चेयरमैन साहब और जितने बाकी भी लोग बैठे हैं और सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने 58,000 काउंसलर साहबान को बहाल किया है। और जब से हम 2 साल हो गए हैं चार्ज छोड़ा है, उसके बाद कोई गलियों में, कोई रोड में कोई सफाई नहीं है। और मैं 2 साल के बाद आज दफ्तर में आया हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है कि दफ्तर में कोई यहाँ बंदे रहते ही नहीं हैं, कोई अफसर आते ही नहीं हैं। पूरी गलियाँ हैं, रोड हैं और गलियों में इतना कूड़ा करकट पड़ा हुआ है कि एक 6 मंथ कोई वर्कर नज़र नहीं आता। और मैं चेयरमैन साहब और अफसरान चीफ अफसर ਨੂੰ गुजारिश करें कि मेहरबानी करके टाइम देवन और वर्कर ਨੂੰ हर गली च भेजन और पानी। और दूसरी एक बहुत बड़ा पॉइंट कि हमारा डिस्पोज़ल चौबारे की लाइन कुछ 6 मंथ हो गए हैं, वो फटी हुई है और वो नीचे वाला और ऊपर वाला पानी मिला हुआ है और उसकी कैंसर और उस पानी के इतने साइड इफ़ेक्ट आएंगे कि 6 मंथ बाद अगर उसके टेस्ट किया जाए तो पूरा चौबारे में वो सारे ही उसको कैंसर वगैरह की अलामत हो सकती है। और मेहरबानी करके एक तो उस लाइन को नया डाला जाए। का कहना था कि आवाम की फलाह बहबूद के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। बल्दियाती निज़ाम से ही आम आदमी को रिलीफ और सहूलियात की फराहमी मुमकिन है। चौबारा में वाटर सप्लाई फराहम की जा रही है, इसमें नालियों का गंदा पानी मिक्स हो रहा है, जिससे आवाम की सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। इसको जल्द हल करेंगे और आवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरने की भरपूर कोशिश करेंगे। कैमरामैन टीम के हमरा चौधरी मोहम्मद ताहिर, चौबारा। यहाँ पर आपको एक और खबर से आगाह करते चलें कि रावलपिंडी अदालत ने 9 साला बच्ची ज़ैनब से ज़्यादती और कत्ल के केस में मुजरिमों को सज़ा सुना दी। थाना सिविल लाइंस की हदूद में 9 साल की ज़ैनब से ज़्यादती और कत्ल के केस का फैसला सेशन अदालत रावलपिंडी ने सुनाया, जिसमें जुर्म साबित होने पर मुजरिम बाबर मसीह और मोहम्मद अदनान को 2-2 मरतबा सजाए मौत का हुक्म दे दिया गया। अदालत की जानिब से मुजरिमान को 5-5 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा भी सुनाई गई, जबकि मुजरिम को जुर्म छुपाने पर 7 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई गई। 9 साला ज़ैनब से ज़्यादती और कत्ल के अफसोसनाक वाक़ये का मुकदमा 22 मार्च 2021 को थाना सिविल लाइन में दर्ज किया गया था, जिसका मुजरिम ने दौरान तफ्तीश ज़्यादती का एतराफ़ भी कर लिया था।
मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम खुश्क जबकि पहाड़ी इलाकों में सर्द रहेगा। रात के वक्त पंजाब के कुछ इलाकों और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का इम्कान है। पंजाब में आज मियांवाली, खुशाब और सरगोदा में मतला अबर आलूद रहने और बूंदाबांदी की पेशगोई है। खैबर पख्तूनख्वा में शाम के वक्त चित्राल, दीर, सवात और एबटाबाद में हल्की बारिश का इम्कान है। कश्मीर और गिलगित में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बादल बरसने की तवक्को है। वॉइस टुडे से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट voicetoday.tv।